ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਿਸਟਰ IP ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PGI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पर तीनों हॉस्पिटल जिसमें मैं गया हूँ, कहीं भी मेरा इलाज नहीं हुआ। कौन कौन सा हॉस्पिटल? मैं गया हूँ जी सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल मोहाली 6 फेज़। उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़मीन पे रखा और कुत्तों की तरह ट्रीट किया। तो खाना वाना वहाँ पे PGI में मिलता था, खाना और पानी वगैरह? कुछ नहीं मिलता था। 22 दिन आपने कुछ खाया नहीं वहाँ पे? नहीं, पानी भी नहीं पिलाते, पानी भी नहीं पिलाया। पानी भी नहीं पिलाते, रोटी के लिए बोलते, रोटी नहीं देते, कुछ नहीं करते, सिर्फ नाम है उनका। ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। कभी अभी सोचते हो अगर मेरे माँ बाप होते, ज़िंदा होते, तो आज शायद आपका ये हाल ना होता? अगर होता भी तो एटलीस्ट कोई आपको देखने वाला तो होता। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है। आज ऐसी हालत नहीं होती। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ 에ਅਰ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੇਠ ਨੇ PGI ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ। ਸੁਰਨਜੀਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਭਾਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਭਾਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡਰਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੋ ਰੋਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। अभिषेक जी पंजाबी समझ लेनी हो या हिंदी दे विच गल करिए? हिंदी। हिंदी में बात करेंगे। अभिषेक जी हिंदी में कंफर्टेबल हैं। अभिषेक जी आपकी ये हालत कैसी हुई, आपको प्रॉब्लम क्या थी? मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं रही। 1 महीना पहले बस मैं एक दिन सुबह उठा और मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मैं जैसे ही वॉशरूम जाने लगा मैं गिर गया, और उसके बाद वॉशरूम मेरा भाई ले गया मुझे सहारा देके, और जब मैं वापस आया मैंने चाय पीनी चाहिए, चाय का कप उठाया तो चाय का कप गिर गया, और हाथों में और पैरों में बहुत ज़ोर से करंट दौड़ने लगा, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर दोनों काम करने बंद कर गए। तो आपने इसके बारे में किसी को फिर बताया, फ़ोन किया, डॉक्टर को कंसल्ट किया, किसी रिश्तेदार को, माता पिता को? देखिए मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैंने रिश्तेदारों को इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि वो भी कुछ नहीं करते, और जहाँ तक मैंने अपना देखा मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यहाँ से अपने वहाँ पीजी से सीधा हॉस्पिटल गया और वहाँ पर इलाज कराने की पूरी कोशिश की, पर तीनों हॉस्पिटल जिसमें मैं गया हूँ कहीं भी मेरा इलाज नहीं हुआ। कौन कौन सा हॉस्पिटल? मैं गया हूँ जी सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल मोहाली 6 फेज़, उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़मीन पे रखा और कुत्तों की तरह ट्रीट किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे 32 भेज दिया, और 32 वालों ने फर्स्ट टाइम मुझे वापस भेज दिया, और सेकंड टाइम में एक डॉक्टर आया भगवान का रूप बन के, जिसने मुझे वहाँ पे एडमिट किया और कहा कि हम कोशिश करेंगे, पर ये बीमारी बहुत अजीब होती है। तो बीमारी का बताया उन्होंने भी, बीमारी क्या है आपको? हाँ जी, उन्होंने कहा आपको अधरंग हुआ है, आपको पैरालिसिस हुई है। पहले कभी प्रॉब्लम थी आपको? नहीं जी, पहले कभी प्रॉब्लम नहीं रही। तो ये जो फ़ोटो हमने पहले भी दिखाई है अपने दर्शकों को, ये आपके पिताजी? हाँ जी, ये मेरे पापा हैं। आपके पापा का पूरा नाम क्या है और ये क्या करते थे, इसके बारे में ज़रूर एक बार बताइए। इनका पूरा नाम एयर कॉमोडोर आईपी अलेक्जेंडर है, और ये पायलट थे, और ये इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के पर्सनल पायलट थे, और इन्होंने एयरफोर्स को बहुत साल सर्विस दी है, और इनके साथ हम लोग बहुत जगह घूमे, और काफ़ी जगह इन्होंने हमें घुमाया। उस टाइम हम लोग सब ठीक थे, फैमिली अच्छी थी, तो सब कुछ सही था। मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इन सब के साथ फ्लाई कर चुके हैं आपके पिताजी? हाँ जी, सबको फ्लाई कर चुके हैं, और सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। आपने कभी इनमें से किसी से मुलाकात भी की है इनमें से? नहीं जी, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं जी। और वो ठीक हैं? नहीं, वो मेंटली रिटार्डेड है इस टाइम, मतलब बचपन से, और वो मेरे साथ नहीं है अभी, 32 हॉस्पिटल में है। उनका ख्याल कौन रख रहा है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई भी नहीं जी वहाँ पे। आपका कोई रिश्तेदार, कोई अच्छा माता जी आपके क्या करते थे, माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम पैमला था, पैमला अलेक्जेंडर। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर थे। हाई प्रोफाइल कैसे, मतलब उनके क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल थे? हाँ जी, उनके क्लाइंट सारे हाई प्रोफाइल। जैसे क्लाइंट्स में कौन कौन शामिल है, कुछ किसी के नाम आपको याद है? हाँ जी, अपने सीएम साहब अमरिंदर सिंह जी,
और अपनी भजन लाल जी थे। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। हाँ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका बेटा चंद्रमोहन और उनके बहुत सारे कलीग्स, वो सारे मम्मी के पास ही आते थे। जितने जी, पंजाब में और भी कोई था क्लाइंट? ज्वेलर्स जितने हैं, तलवार सन्स और ये निक्का माल बापूराम, ये सब मम्मी के क्लाइंट्स थे। माता जी का देहांत कब हुआ? मम्मी का 2006 में हुआ जी, 2006। तो अच्छा, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जितना हमें समझ है वो ये होती है कि आपका भविष्य क्या कहता है, क्या करने से आपका ठीक होगा, क्या उपाय करने से आपका काम ठीक चलेगा, यही यही होता है एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी पता नहीं मुझे ये सवाल करना चाहिए या नहीं, कभी आपकी माता जी ने आपका या आपके भाई का कभी आपका आपका भविष्य देखने की कोशिश नहीं की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आगे जाके आपका क्या हाल होने वाला है? नहीं जी, कभी नहीं की। अपनी फैमिली के लिए उन्होंने कभी नहीं देखा। कभी सोचा नहीं होगा भी ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके जो माताजी हैं, उनके दादाजी श्री ठाकुर धान सिंह बिष्ट हैं, जो एक अरबपति थे। हाँ जी, अल्मोड़े में बहुत पैसा था उनके पास, बहुत प्रॉपर्टी थी। तो आप सड़क पे कैसे आए? मतलब एक अरबपति का पड़पोता जिसके पिता इंडियन एयरफोर्स में एओसी थे, आप सड़कों पर कैसे आ गए? आपकी ये हालत हुई कैसे? बस जी कुछ टाइम का लगा लो। बाकी अभी जो मेरी हालत है ये मुझे नहीं पता कैसे हुई, क्या हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि बीमारी ठीक नहीं होगी, और कुछ नहीं बताया। आप रहते कहाँ पे थे? वहाँ पे जहाँ पे आप रहते थे, सुनने में आया आपने वो मकान बेच दिया। हाँ जी, वो क्यों बेचा? पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम। आपके पिताजी का देहांत कब हुआ है? लास्ट ईयर नवंबर। तो आपने वो जो फ्लैट अपना बेच दिया, तो उसमें से कुछ रुपया जोड़ा भी है या कितने का बिका था वो, और कितने रुपए आपके पास अभी पड़े हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है जी। जो देने थे लोगों के दे के, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप शराब पीते हो? नहीं, आप नहीं पीते, पहले पीते थे? पहले पीते थे। शराब में उड़ाए पैसे? नहीं, घूमने फिरने में ज़्यादा। कहाँ घूमने जाते थे? बस ऑलमोस्ट पूरा इंडिया। आप काम भी करते थे, मैंने सुना है आप कोचिंग देते थे। हाँ जी, देता था। 7 साल, 5 साल, 6 साल दी है मैंने कुछ। किस चीज़ की कोचिंग? इंग्लिश की, आइल्स की और टोफल की। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एमए इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश अच्छा था। हाँ जी। मैंने सुना है आपके पिताजी को राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। हाँ जी, उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है राष्ट्रपति से। कौन से राष्ट्रपति से मिला? शंकर दयाल शर्मा जी से। आपको याद है वो? हाँ जी, हम लोग गए थे सब दिल्ली, वहाँ पे उनको मेडल दिया गया। आप भी मिले थे राष्ट्रपति जी से? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सोच के कभी कुछ होता नहीं है? अभी आपके पिताजी एओसी में थे, माताजी का बहुत अच्छा जो एस्ट्रोलॉजी का काम चल रहा था, तो परिवार को हुआ क्या? पहले 2006 में माताजी का देहांत हुआ, 2020 में पिताजी का देहांत हुआ, तो दोनों भाई अच्छे, आप कह रहे हो आप अच्छे पढ़े लिखे थे, तो फिर आपने फिर दोबारा नौकरी करने की नहीं सोची? कैसे, मतलब ये लाइफ आपकी पिताजी के बाद कैसे बदली, कैसे ये, मतलब वो मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे को खुद इस बात का जवाब नहीं है जी। पता नहीं टाइम ने कौन सा फेरा लिया है कि हम लोगों की आज ऐसी हालत हो गई है। तो रिश्तेदार तो कोई होगा ना भई, आपका कोई चाचा चाचा कितने हैं आपके? चाचा मेरे 3 हैं। एक लुधियाना में डॉक्टर है, 2 की डेथ हो गई है। बुआएं मेरी 3 हैं, तीनों ठीक हैं। और एक बुआ दुबई में है, जीनत हुसैन उनका नाम है। एक बुआ मेरी दिल्ली में है, रीटा गुप्ता उनका नाम है। और एक बुआ मेरी गुड़गांव में है, अ, बीना दत्ता उनका नाम है। और जो चाचा लुधियाना में है उनका? डॉक्टर ए ओ अफजल उनका नाम है। वो खुद डॉक्टर साहब हैं? हाँ जी। तो
उनको नहीं आपने कभी कोशिश की, चाचा जी देखिए मुझे हुआ क्या? नहीं जी, मुझे मालूम था कुछ नहीं होगा। कि क्या नहीं, मेडिकली कुछ नहीं होगा या चाचा से कुछ नहीं होगा? चाचा ने कुछ नहीं करना। जो बाकी 2 चाचा जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ होंगी, चाची जी से किसी से बात करने की कोशिश की? मैरिड नहीं थे। एक चाचा मैरिड थे जिनकी वाइफ अभी दिल्ली है। तो आपने कभी इनसे अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं किया? इन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की? इन्होंने कभी नहीं किया जी। नहीं, जब तक पिताजी थे तो? जब तक पापा थे, सबसे बड़े भाई थे, तब उन्होंने नहीं किया तो अब क्या करेंगे। नहीं, जब पापा थे आपके तब तो वो बात करते होंगे ना? अपने पापा से, आपके पापा से तो बात करते होंगे आपके चाचा लोग? जब उनको मतलब होता था, कोई चीज़ लेनी होती थी, कैंटीन आना होता था, तब तो करते थे, नहीं तो नहीं। मतलब जब एयरफोर्स की कैंटीन से सामान लेना होता था? हाँ जी, तब करते थे, बस उसी टाइम आते थे। तो सामान लेने कितनी बार आते थे साल में? आ जाते थे 5-6 बार। सिर्फ सामान लेने? हाँ, दारू लेने। वैसे कभी नहीं बात करते थे? नहीं, वैसे नहीं हाल चाल पूछते थे। कभी आपने कभी अब अभी सोचते हो अगर मेरे माँ बाप होते, ज़िंदा होते तो आज शायद आपका ये हाल ना होता? अगर होता भी तो एटलीस्ट कोई आपको देखने वाला तो होता? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात सही है। आज ऐसी हालत नहीं होती। कभी अकेले में अपनी माता जी की या पिताजी की याद आती है तो कभी रोते भी हो? नहीं, रोता नहीं हूँ, बस याद करता हूँ। याद तो बहुत आती है, क्योंकि जब वो लोग थे तो टाइम कुछ और था, अब कुछ और है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुछ तस्वीरां सानू सुरंजीत भाजी ने भी दिखाइयाँ। अच्छा, एक और किस्सा सुरंजीत भाजी बता रहे थे भी आप जब घूमने जाते थे, जैसे आपने बताया घूमने आपने पैसा काफ़ी घूमने में उड़ा दिया, तो एक कोई टैक्सी वाला था जो एक एक घंटे के आपसे हज़ार हज़ार रुपये लेता था? हाँ जी, 1000 रुपये घंटे के कौन लेता है? वो गाड़ी घुमाता रहता था या क्या करता था 1000 रुपये? गाड़ी घुमाता रहता था। नहीं, 1000 रुपये सिर्फ घुमाने के या फिर वेट करने के लिए? नहीं, बस गाड़ी घुमाता रहता था और 1000 रुपये ले जाता था। 1 घंटे के हाँ जी, या 1 दिन के? 1 घंटे के। एक दिन में कितने आप घंटे घूमते रहते थे? नहीं, ऐसे नहीं घूमता था मैं, जाता था तो लंबी ट्रिप पे जाता था, उसको तब ले जाता था। आपको अब ये विचार कभी आता है कि मैंने पैसा थोड़ा-सा अगर जोड़ के रखा होता, तो आपके अभी काम आ जाता? हाँ जी, बिल्कुल आता है। जब पीजीआई में पीजीआई का किस्सा सुना रहे थे, पीजीआई में पीजीआई आप पहुँचे, तो पीजीआई में क्या हुआ? किसी ने वहाँ पे कोई दवा दी, इंजेक्शन दिया, लुक आफ्टर किया, आपका नहीं किया? सिर्फ इंजेक्शन दिया जी, 5-6 इंजेक्शन भर के लाते थे, वो लगाते थे, बस, और चले जाते थे। कोई टेस्ट करवाया आपके? नहीं, तो इंजेक्शन किस चीज़ के देते थे? पता नहीं, ना बताते थे, ना बोलते थे। तो खाना-वाना वहाँ पे पीजीआई में मिलता था, खाना और पानी वगैरह सब? कुछ नहीं मिलता था। कुछ तो देते होंगे ना खाने के लिए? नहीं, कितने दिन वहाँ पे रहे हो आप? 22 दिन। 22 दिन आपने कुछ खाया नहीं वहाँ पे? नहीं, और पानी तो देते होंगे? नहीं, पानी भी नहीं। जो मेरे साथ वाले पेशेंट होते थे, वो पानी पिलाते थे। मतलब पीजीआई में आपको ना पानी मिला, ना ही खाना मिला? हाँ जी, तो आप बिना पानी के ज़िंदा कैसे रहे? मतलब साथ वाले भी कितना टाइम पिलाते थे पानी? जब वो लोग पिला देते थे, उसी से जिंदा हूँ। तो वहाँ पर पीजीआई में कोई पीजीआई वाले देख रहे थे आपको या कोई और देख रहा था? पीजीआई के साथ एक लाइफ लाइन करके एनजीओ था, वो सुबह आते थे, मेरे को नहलाते उलाते थे और चले जाते थे। तो नहलाने के बाद पूछते नहीं थे भूख लगी है? नहीं, कभी उन्होंने कुछ खिलाया नहीं? ना, 22 दिन में कभी भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं।
ਸੁਰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ 22 ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਪੀਏ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਸਟਰ IP ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। AOC ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 에ਅਰਬੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਰੱਬ ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ NGO ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।